Hello students, welcome to all of you in e-learning program initiative by Shri Gnan Manjari Vidyapith. Today we are going to learn Sanskrit subject chapter 7 Subhashit Kusumani, Flowers of Good Sayings. नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 7 पद्य सुभाषित कुसुमानी यह पढ़ रहे थे। इसके 4 श्लोक जो है हमने कंप्लीट किए थे। हमने देखा था सुभाषित कुसुमानी मीन्स फ्लावर्स ऑफ गुड सेइंग्स, जो गुड थॉट्स है, अच्छे विचार है। संस्कृत में उसको सुभाषित ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे 7 सुभाषित यहाँ पे दिए गए हैं। 4 सुभाषित जो हमने पढ़े थे, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द स्पीच ऑफ गुड पीपल, सेकेंड यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज, थर्ड गेन ऑफ गुड क्वालिटीज विथ एफर्ट, फोर्थ हार्म कॉज बिकॉज ऑफ द कंपनी ऑफ फिकल माइंड पर्सन। चार श्लोक जिसका ट्रांसलेशन हमने किया था, एक बार रिपीट कर ले। फर्स्ट, एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल इवन कैजुअली, इट इज लाइक अ लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक। ऑन द अदर हैंड्स, समथिंग सेड बाय wicked people even under oath or after taking oath is like a batter written on the surface of the water. Second, a big tree having fruit and shade is worthy to be resorted to, even if by chance there is no fruit. Who can prevent one from enjoying its shade? Third, a boulder is placed on the mountain with mighty effort, but it is pushed down in a moment. Likewise, in case of man's soul going up and down due to virtue or vice. Fourth, he is displaced in this moment and placed in the next moment. Even a favor from the one whose mind is deranged is terrible to be feared. ये 4 श्लोक जो हमने कंप्लीट किए थे। आज श्लोक 5th, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदनतापताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यथा चतुर्भिः, चतुर्भिः by 4 actions. Kanakam, Suvarnam, gold. Parikshate is tested. Yatha Chaturbhihi by 4 actions. Yatha Chaturbhihi by 4 actions. Which 4 actions? Nigharshana. Nigharshana by rubbing. Chedan by cutting. Tap, heating. Tadanihi and streaking.
कनकम सुवर्णम गोल्ड. परीक्ष्यते is tested. यथा चतुर्भिः by frictions, निगर्षण by rubbing, छेदन by cutting, ताप hitting, ताड़नैः striking, कनकम gold, परीक्ष्यते is tested. As gold is tested in 4 ways: by rubbing, cutting, hitting, and striking. As a gold is tested in 4 ways: by rubbing, cutting, hitting, and striking. As gold is tested in 4 ways: by rubbing, cutting, hitting, and striking. सोनी जो है वह सोने को 4 प्रकार से तराशता है. तो सबसे पहले निकर्षण, बाय रबिंग, उसको रब करता है. फिर छेदन, उसको काटता है चेक करने के लिए, उसको तराशने के लिए. फिर हिटिंग, उसको ताप से गरम करता है. फिर ताड़ने ही, फिर उसको फटकार लगाता है जिससे पता चलता है कि यह गोल्ड जो है वह कैसा है. और उससे फिर ये 4 प्रक्रिया में से गोल्ड बाहर निकलता है. तो एक प्रकार का कोई भी ऑर्नामेंट्स बन जाता है जिससे वह बहुत अच्छा लगता है. इसलिए एज अ गोल्ड इज टेस्टेड इन 4 ways: निकर्षण, बाय रबिंग, छेदन, कटिंग, ताप, हिटिंग, ताड़नैः एंड स्ट्रीकिंग. कनकम एज गोल्ड, परीक्ष्यते एज इज टेस्टेड. तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा. तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते. पुरुषः, in Sanskrit the word purush is used in the sense of human being, man and woman. तो पुरुषः परीक्ष्यते, man is also tested श्रुतेन in 4 ways. First is shrutena, by education. Shilena, character. Gunena, virtue. Karmana, work. Man is also tested in 4 ways: by education, shrutein, shilein, character, gunein, virtue, and कर्मणा, वर्क. तो जिस तरह से 4 प्रकार से
सुवर्ण सोने की परीक्षा होती है, उसी तरह 4 प्रकार से व्यक्ति की भी, पुरुष की भी परीक्षा होती है। Man is also tested in 4 ways: by education, character, virtue and work. उसका जो भी एजुकेशन है, अभ्यास है, उसका चारित्र्य किस प्रकार है, उसमें कैसे गुण है, उसका कर्म जो है वह, उसका वर्क किस प्रकार का है। तो इस तरह से व्यक्ति पूरा किस प्रकार है यह पता चलता है। All that glitters is not gold, so the tests are devised to separate real, genuine gold from the fake imitation. Similarly, education, character, virtues, and work are the 4 tests that determine the worth of a person. इसलिए 4 प्रकार से व्यक्ति की परीक्षा की जाती है। As a gold is tested in 4 ways: by rubbing, cutting, hitting and streaking. Man is also tested in 4 ways: by education, character, virtue and work. As gold is tested in 4 ways: by rubbing, cutting, hitting and streaking. Man is also tested in 4 ways: by education, character, virtue and work. As gold is tested in 4 ways: by rubbing, cutting, hitting and streaking. Man is also tested in 4 ways: by education, character, virtue and work. As gold is tested in 4 ways: by rubbing, cutting, hitting and streaking. Man is also tested in 4 ways: by education, character, virtue and work. Next, आपत्सु रामः समरेषु भीमः, दानेषु कर्णश्च कृष्णः, भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु, विक्रांत कार्येषु भवांजनेयः. Virtues fit to be imitated of the great men. कोई भी अच्छे व्यक्ति है तो उसमें से अच्छे गुण प्राप्त करने चाहिए। In this verse, some elderly person is blessing the younger person, son or disciple, to be the best in everything. The idols set before him are well known. First, आपत्सु रामः. Ramah, Biram in आपत्स calamities. समरेषु भीमः, भीम in समरेषु battles. कोई भी आपत्ति में राम को आदर्श मानना चाहिए कि किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह आपत्ति में किस तरह से बाहर निकलते हैं, क्योंकि 14 वर्ष वनवास में भगवान राम रहे और वह जब वन में गए तो अपने धनुष के अलावा कुछ भी भगवान के साथ नहीं था। फिर भी कैसी कैसी आपत्ति
का सामना अच्छी तरह से 14 साल तक भगवान ने किया। उसमें रावण के साथ भयंकर युद्ध भी हुआ। तो बड़ी से बड़ी आपत्ति उस समय भगवान राम के सामने आई, लेकिन अच्छी तरह से शांति से सोचकर उसका सामना किया। इसलिए यहाँ पे राम को आदर्श आपत्सु कैलेमिटीज के लिए आइडल माना गया है। इसलिए कहा कि विराम इन कैलेमिटीज, भीमः समरेषु, भीम इन बैटल्स। युद्ध के लिए भीम को आदर्श माना गया है। कि भीम जैसा बलवान, भीम को शस्त्र की जरूरत ही नहीं थी। एक साथ 10 लोगों को कुचल सकता था अपने हाथ से। इतनी शक्ति भीम में थी। इसलिए भीम इन बैटल्स, आपत्सुरामः विराम इन कैलेमिटीज, भीम इन बैटल्स, कर्णश्च दानेषु, इन एक्ट्स ऑफ चैरिटी। कर्ण इन एक्ट्स ऑफ चैरिटी। कर्ण, यहाँ पे कर्ण ऐसा लिखना है संस्कृत में, कर्ण इन एक्ट्स ऑफ चैरिटी। कर्ण इन एक्ट्स ऑफ चैरिटी। विराम इन कैलेमिटीज, भीम इन बैटल्स, कर्ण इन एक्ट्स ऑफ चैरिटी। कर्ण जो है वह दान में श्रेष्ठ माना गया है। युधिष्ठिर से भी श्रेष्ठ कर्ण है, क्योंकि अंतिम समय में कर्ण के पास जो कवच और कुंडल थे, जिससे कोई भी उसको मार नहीं सकता। कवच ऐसा कवच था कि कर्ण एक प्रकार से अमर ही था। लेकिन अंतिम समय में इंद्र एक ब्राह्मण का वेश लेकर आते हैं और युद्ध का अंतिम दिन होता है, और कर्ण के पास से कवच और कुंडल वह ब्राह्मण दान में मांगते हैं। और कर्ण को पता था कि कवच और कुंडल दे दिया मतलब अपनी जान ही देनी थी। तो वह हंसकर कवच और कुंडल उस ब्राह्मण को दान में दे देते हैं। कि जब कर्ण की मृत्यु हुई तब कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे, कि एक तरह से कौरवों की सेना में से लड़ रहा था, अधर्म की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, इसलिए आज इसकी मृत्यु हो रही है। लेकिन ऐसा वीर कोई भी दूसरा हो नहीं सकता, और अंत में उसको मोक्ष मिले, इसलिए उसके पास से अंत में स्वर्ण का दान मांगते हैं भगवान कृष्ण स्वयं। तो कर्णश्च दानेषु, कर्ण इन एक्ट्स ऑफ चैरिटी, विराम इन कैलेमिटीज, भीम इन बैटल्स, कर्ण इन एक्ट्स ऑफ चैरिटी, कृष्ण नयेषु। नय मीन्स पॉलिटिक्स। कृष्ण इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन कृष्ण के जैसा कोई भी नहीं था इन पॉलिसीज और पॉलिटिक्स। कृष्ण के जैसा कोई भी
नीति का जानकार, राजनीतिज्ञ और कोई भी नहीं था। नहीं यानी कि नीति, पॉलिसीज, और राजनीति, पॉलिटिक्स, दोनों के जानकार थे भगवान कृष्ण। इसलिए जब जब शकुनी ने पांडवों को मारने के लिए योजना बनाई, तब तब कृष्ण ने अपनी नीति से उसको बचाया। तो विराम इन कैलमिटीज, भीम इन बैटल्स, इन कर्ण इन एक्ट्स ऑफ चैरिटी, कृष्ण इन पॉलिसीज, भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, भीष्म इन फुलफिलिंग प्लेजेस। भीष्म जिसका नाम देवव्रत था जन्म से, लेकिन जब देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली, उस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं, इसलिए बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रचलित हुए। जो प्रतिज्ञा ली थी कि आजीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, तो जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत वह प्रतिज्ञा में अकड़ रहे, भीष्म प्रतिज्ञा थी, इसलिए उसका नाम भीष्म रखा गया। इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, ऐसा प्रतिज्ञा का पालन आज तक किसी ने नहीं किया है, इसलिए भीष्म इन फुलफिलिंग प्लेजेस, विराम इन कैलमिटीज, भीम इन बैटल्स, इन एक्ट्स ऑफ चैरिटी, कृष्ण इन पॉलिसीज, भीष्म इन फुलफिलिंग प्लेजेस। विक्रांत कार्येषु आंजनेयः भव, भव आंजनेयः, इस तरह से है, आंजनेयः। आंजनेयः मीन्स हनुमान जी, अंजनी के पुत्र है, इसलिए हनुमान जी को आंजनेयः ऐसा बताया जाता है। आंजनेयः विक्रांत कार्येषु, हनुमान इन ऑफ वैलर। पराक्रमी, हनुमान जी जैसे कोई भी नहीं थे। बस ऐसे ही खाली हाथ लंका में गए थे और पूरी लंका को जला के आए थे। तो ऐसे पराक्रमी हनुमान जी की तरह कोई भी नहीं था। इसलिए विक्रांत कार्येषु आंजनेयः भव, हनुमान इन ऑफ वैलर। विराम इन कैलमिटीज, भीम इन बैटल्स, कर्ण इन एक्ट्स ऑफ चैरिटी, कृष्ण इन पॉलिसीज, भीष्म इन फुलफिलिंग प्लेजेस, हनुमान इन ऑफ वैलर। विराम इन कैलमिटीज, भीम इन बैटल्स, in acts of charity, Krishna in policies, Bhishma in fulfilling pledges, Hanuman in of valor. Viram in calamities, Bhim in battles, Karna in acts of charity, Krishna in policies, Bhishma in fulfilling pledges, Hanuman in of valor. Viram in calamities, Bhim in battles, Karna in acts of charity, Krishna in policies, Bhishma in fulfilling pledges, Hanuman in of valor. Fifth, as gold is tested in 4 ways: by rubbing, cutting, hitting, and striking. Man is also tested in 4 ways: by education, character, virtue, and work. Biram in calamities, Bhim in battles, in Karna in acts of charity, Krishna in policies, Bhishma in fulfilling pledges, Hanuman in acts of valor.
नेक्स्ट, प्रारभ्यते न खलु विघ्य भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति। विघ्न भयेन नीचै खलु न प्रारभ्यते। विघ्न भयेन, being afraid of difficulties or obstacles. विघ्न भयेन, नीचै, lower person. विघ्न भयेन, being afraid of difficulties, fear of obstacles. नीचैहि, lower person. खलु, indeed. प्रारभ्यते, the beginning. Indeed, the beginning is not made by the lower person owing the fear of obstacles. प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, विघ्न भयेन नीचैः खलु न प्रारभ्यते. Indeed, the beginning of any work is not made by the lower person owing the fear of obstacles. मध्याः, the middle ones. प्रारभ्य, starting. विघ्न विहताः, when they are struck down of difficulties. Viramanti, stop. Stop. The middle ones, Viramanti, stop after starting when they are struck down by difficulties. विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना. Once having started the best kind of person. प्रारभ्य चोत्तमजनाः, प्रारभ्य चोत्तमजनाः, उत्तमजनाः च उत्तमजनाः च प्लस उत्तमजनाः, इस तरह से चोत्तमजनाः, बेस्ट काइंड ऑफ पर्सन्स, उत्तमजनाः. Once having started the best kind of person, do not up even though they are faced with difficulties again and again. Once having started the best kind of person, do not up even though they are beset with difficulties again and again. Lower person, lowest are filled with negative thoughts. They do not start a work because they are afraid of the difficulties. The mediocres are enthusiastic in starting an activity, but when they encounter the problem, their
initial enthusiasm disappears. The best are indomitable and they never give in to diversity. तो तीन प्रकार के व्यक्ति यहाँ पे बताए गए हैं. फर्स्ट लोअर पर्सन, देन मिडल वंस एंड देन उत्तम जना द बेस्ट काइंड ऑफ पर्सन. तो जो लोअर पर्सन है वह कोई भी कार्य है, वर्क है, वह शुरू करता है और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उससे डर कर छोड़ देता है. द मिडल वंस, वह शुरू करता है और आगे चलता भी है लेकिन फिर प्रॉब्लम को देख के वह छोड़ देता है. और उत्तम जना द बेस्ट काइंड ऑफ पर्सन है, वह कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन अपना जो कार्य है वह छोड़ता नहीं है. अपना जो लक्ष्य है वह किसी भी हाल में पूरा करता है. अपने लक्ष्य के साथ ही वह चलता है. तो ये तीन प्रकार के लोग होते हैं, यह बात यहाँ पे बताई गई है. Indeed, the beginning of any work is not made by the lower person, owing the fear of obstacles. The middle ones stop after starting when they are struck down by difficulties. Once having started, the best kind of person do not up even though they are best beset with difficulties again and again. Indeed, the beginning of any work is not made by the lower person, owing to fear of obstacles. The middle ones stop after starting when they are struck down by difficulties. Once having started, the best kind of person do not up even though they are beset with difficulties again and again. Indeed, the beginning of any work is not made by the lower person, owing to fear of obstacles. The middle ones stop after starting when they are struck down by difficulties. Once having started, the best kind of persons do not up even though they are beset with difficulties again and again. तो ये 7 श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं. 1 to 7 एक बार रिपीट ट्रांसलेशन देख लेते हैं. फर्स्ट, as to something said by good people even casually, it is like a letter inscribed on the rock. On the other hand, something said by weak people even under oath or after taking oath is like a letter written on the surface of the water. A big tree having fruit and shade is worthy to be resorted to, even if by chance there is no fruit who can prevent one from enjoying its shade. A boulder is placed on the mountain with mighty effort, but it is pushed down in a moment. Likewise, in case of man's soul going up and down due to virtue or vice. Fourth, he is displaced in this moment and placed in the next moment. Even a favor from the one whose mind is deranged is terrible to be feared. Fifth, as gold is tested in 4 ways: by rubbing, cutting, hitting, and striking. Man is also tested in 4 ways: by education, character, virtue, and work. Sixth, be Ram in calamities, Bhim in battles, in Karna in acts of charity, Krishna in policies, Bhishma in fulfilling pledges,
Hanuman in acts of valor. 7. Indeed, the beginning of any work is not made by the lower persons, owing to fear of obstacles. The middle ones stop after starting when they are struck down by difficulties. Once having started, the best kind of persons do not up even though they are beset with difficulties again and again. तो ये 1 to 7 श्लोक सुभाषित जो इस चैप्टर में थे. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं. एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन संस्कृत क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैः प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम भवति. किसके द्वारा कहे गए वचन जो है वह पानी में लिखे गए अक्षर की तरह है. तो असद्भिः बाय विक पीपल. असद्भिः प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम भवति. असद्भिः प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम भवति. शिला कथम शैले आरोप्यते. शिला कथम शैले आरोप्यते. पत्थर जो है किस तरह से पर्वत पर रखा जाता है. तो शिला महता यत्नेन शैले आरोप्यते. शिला महता यत्नेन शैले आरोप्यते. थर्ड क्वेश्चन इज गुणेन कः परीक्षते. गुण से किसकी परीक्षा होती है. तो गुणेन कः परीक्षते. गुणेन पुरुषः परीक्षते. गुण से पुरुष की परीक्षा होती है. गुणेन पुरुषः परीक्षते. कार्य प्रारभ्य के परित्यजन्ति. कार्य को प्रारंभ करके कौन छोड़ देता है. तो कार्य प्रारभ्य मध्यम जनाः परित्यजन्ति. कार्य प्रारभ्य मध्यम जनाः परित्यजन्ति. गुणेन कः परीक्षते. गुणेन पुरुषः परीक्षते. कार्यं प्रारभ्य के परित्यजन्ति. कार्यं प्रारभ्य मध्यम जनाः परित्यजन्ति. रिपीट. फर्स्ट इज कैः प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम भवति. तो असद्भिः प्रोक्तम जले लिखितम अक्षरम भवति. सेकेंड इज शिला कथम शैले आरोप्यते. शिला महता यत्नेन शैले आरोप्यते. गुणेन कः परीक्ष्यते. गुणेन पुरुषः परीक्ष्यते. कार्यं प्रारभ्य के परित्यजन्ति. कार्यं प्रारभ्य मध्यम जनाः परित्यजन्ति. सेकंड क्वेश्चन इज प्रश्नानाम् उत्तराणि आंग्ल भाषायां लिखत. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज गोल्ड टेस्टेड. श्लोक नंबर 5. Gold is tested in 4 ways. It is tested by rubbing it against a touchstone, by cutting, hitting and striking. These tests decide whether the metal is real, genuine gold or imitation. तो ये जो सोना है 24 कैरेट का है कि नहीं, इसको जानने के लिए इस तरह से इसको टेस्ट करते हैं. किस तरह के. हाउ इज गोल्ड टेस्टेड. द गोल्ड इज टेस्टेड इन 4 ways. इट इज टेस्टेड बाय रबिंग एट अगेंस्ट टचस्टोन, बाय कटिंग, हिटिंग एंड स्ट्रिकिंग. दिस टेस्ट डिसाइड वेदर द मेटल इज रियल, जेन्युइन गोल्ड और इमिटेशन. Second question is who should be the idols in difficulty and keeping promises. Why? Who should be the idols in
difficulty and keeping promises. Why? Sixth slok. According to the poet, Lord Ram should be our idol when we come across the difficulties. He spent such a long period in the forest, suffered innumerable such troubles, and yet never gave up. In fulfilling the pledges, Bhishma should be our ideal. He promised that he would never marry in his lifetime, and he kept his word. Third question. How is a man not starting any activity known as? श्लोक नंबर 7. कैसा व्यक्ति है वह अपना कार्य जो वर्क है वह स्टार्ट ही नहीं करता. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैन इन द वर्ल्ड: द बेस्ट, द मिडल एंड लोएस्ट. According the poet, a man who does not start any activity, being afraid of facing the difficulties, belongs to the lowest type. First line is, विघ्न भयेन नीचैः खलु न प्रारभ्यते. प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः. Indeed, the beginning of any work is not made by the lower person, owing the fear of obstacles. So there are 3 types of men in the world: the best, the middle, and lowest. According to the poet, a man who does not start any activity, being afraid of facing the difficulties, belongs to the lowest. Next question. श्लोक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उसका अर्थ विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग हमको बताना है. तो यहाँ पे 2 श्लोक का दिया गया है. इंग्लिश क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स के, और अर्थ विस्तार जो है, जो भी पोयम है, पोयम जो भी है, पोएट्री जो है, वह पोएट्री में से अर्थ विस्तार, मैंने जिस पोएट्री में से आते हैं उस पोएट्री में मैंने अर्थ विस्तार आपको करवाए हैं. फर्स्ट पोएट्री में से अर्थ विस्तार था, फर्स्ट पोएट्री हमने पढ़ी, तब उसमें अर्थ विस्तार और जो श्लोक हमको तैयार करने थे उस श्लोक का भी जिक्र मैंने किया था. बाद में सेकंड पोएट्री आई है अभी 7 नंबर, सुभाषित कुसुमानी. उसमें 2 श्लोक है जिसका एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग, अर्थ विस्तार हमको बताना है. तो यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निगर्षणच्छेदन तापताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा. As gold is tested in 4 ways: by rubbing, cutting, hitting, and striking, man is tested in 4 ways: by education, character, virtues, and work. Expansion of meaning. तो 4 प्रकार से सोना जो होता है उसको तराशा जाता है. In the first line, the 4 ways in which gold is tested are given. Real, genuine gold shines brighter after going through these tests. Fake gold does not. Similarly, man is judged in the society not by his appearance or dress, but by his knowledge, character, and virtues are reflected in his work and behavior. From this verse, we know the importance of developing good qualities, character, knowledge, and doing good work to prove our worth.
Moral: we should try to develop good qualities. Second, सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते. A big tree having fruit and shade is worthy to be resorted to. Even if any chance there is no fruit, who can prevent one from enjoying its shade? A big tree has many things to offer: fruit, shade, pleasant sound of rustling leaves. A great man is like a big tree. If you take shelter under a big tree, you are bound to enjoy its cool shade, and if you are lucky, you may even have a chance to eat its fruits. Similarly, when you are in company of a great man, you are sure to be benefited in some way or the other. Being in the company of great persons is always beneficial. तो ये दो अर्थ विस्तार जो है हमको प्रिपेयर करने हैं. लास्ट क्वेश्चन इज श्लोक पूर्तिम कुरुत. फर्स्ट पोएट्री जब हम पढ़े तब हमने देखा था कि 2 श्लोक उसमें से हमको प्रिपेयर करने थे, लर्न करने थे, और इसमें से एक श्लोक है 6 नंबर का. आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्णः भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवांजनेयः. यह श्लोक हमको प्रिपेयर करना है, लर्न करना है. तो यह जो चैप्टर है 7 चैप्टर, ये भी कंप्लीट हो रहा है. होमवर्क में आज जो 3 श्लोक हम पढ़े उसका ट्रांसलेशन एंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर जो है, ये सब कुछ 1 टाइम हमको होमवर्क में लिख के लाना है. थैंक यू वेरी मच.